اسلام آباد کے ایک سرکاری اسپتال میں پاکستان کے یزیدوں فرعونوں نے 40 بچوں کو زندہ جلا دیا، لیکن پاکستان کے میڈیا کے لیے یہ بڑی خبر نہیں ہے۔ عمران خان کے بیٹوں قاسم خان اور سلیمان خان کا سکائی اسپورٹس پر انٹرویو نشر ہو گیا، احتجاج ہو رہا ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے۔ تفصیل کے ساتھ بات ہوگی اس پر اس ولاگ میں عمران خان کے بیٹوں قاسم خان اور سلیمان خان کا انٹرویو بھی آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ آگے چل کے۔ مریم نواز بھی جنگ میں ہے۔ مریم نواز نے وہاں انگریزی زبان کی ٹانگیں توڑ کے رکھ دی ہیں، تقریر کی ہے، تھوڑی سی تقریر بھی سناؤں گا۔ اور مریم ہی کے ایک ٹٹو وہ عمران خان کے بیٹوں کے حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں، پنجابی میں کی ہیں، وہ پنجابی میں آپ کو سناؤں گا۔ اور آخر میں وقت بچا تو میں آپ کو اقبال کی ساقی نامہ سے کچھ شاعری بھی سناؤں گا، آپ کو مزہ آئے گا۔ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم، آپ کا چینل، میں آپ کا اپنا طارق خان، سلام قبول کیجئے۔ نئے آنے والے دوستوں سے میری گزارش ہوگی اور پرانوں سے بھی ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بنیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ مائیکل تھرٹن نے جو انٹرویو لیا ہے عمران خان کے بیٹوں سلیمان خان اور قاسم خان سے، اس حوالے سے لندن میں لارڈز کے میدان میں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دوسرے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن انگلش براڈ کاسٹر نے کھانے کے وقفے میں سابق کپتان عمران خان کے بیٹوں کا انٹرویو نشر کیا۔ اس پر پاکستان کرکٹ بورڈ نے باضابطہ طور پر احتجاج ریکارڈ کروایا، بلکہ غیر ملکی میڈیا کے مطابق پی سی بی نے اسکائی اسپورٹس کے خلاف انگلش بورڈ سے باضابطہ شکایت بھی کی ہے۔ اطلاعات کے مطابق پی سی بی نے اس نشریات کے خلاف احتجاجاً وقفے کے بعد پاکستانی کرکٹ ٹیم کو میدان میں نہ اتارنے کے آپشن پر بھی غور ہوا اور تھوڑی سی تاخیر ہوئی۔ یہ انٹرویو انگلینڈ کے سابق کپتان اور اسکائی اسپورٹس کے موجودہ براڈ کاسٹر مائیکل تھرٹن نے لیا تھا، اور یہ میں ابھی آپ کو سناتا ہوں۔ پاکستان کے میڈیا پر بھی یہ بہت بڑی خبر بنی، اور اس خبر کو لے کر 40 معصوم بچوں کو جو جلایا گیا، اسلام آباد میں شہید کر دیا گیا، وہ میرے ڈھول سپاہیا تینوں رب دیاں رکھاں، کرنیل نہیں جرنیل نہیں، یہ پتر ہٹاتے وقتے نے، وہ خبر نیچے چلی گئی، یہ خبر اوپر آ گئی، پاکستان کے سوشل میڈیا پر بھی آنے لگی۔ عمران خان کے بیٹوں نے جو انٹرویو دیا، پہلے میں آپ کو اس کا کچھ حصہ سنانا چاہتا ہوں۔ شروع کا حصہ لارڈز کا میدان اور لارڈز کے گراؤنڈ کی فرنٹ لابی انٹرنس میں وہ ایک میوزیم سا بنا ہوا ہے ماضی کے عظیم کرکٹرز کا، وہاں پر دنیا کے عظیم کپتانوں میں نمایاں تصویر لگی ہوئی ہے عمران خان کی۔ اسے وہاں سے مریم یا مریم کا پاپا نہیں ہٹوا سکتے۔ اس تصویر کے سامنے بھی قاسم خان اور سلیمان خان تھوڑے رنجیدہ بھی تھے۔ باقی قاسم نے اور سلیمان نے کیا کہا ذرا یہ سن لیں، پھر بعد میں آپ کو مریم کی انگریزی سناؤں گا۔ آپ نے جمے رہنا ہے، چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بھی بنیں، اور سنیں عمران خان کے بیٹے کیا کہہ رہے ہیں۔ In Rawalpindi, his family are extremely concerned for his well-being, and Atha spoke to his two sons yesterday. Kasim Sulna, welcome to Lords first of all. I know you've been here before, but have you been in the pavilion before? No, never been in the pavilion. No, very, very cool kind of zone to be in, so yeah, appreciate it. And we came past your dad's portrait in there, which is sitting very proudly in the Long Room Emma Sargent's painting of him. بہت خوبصورت تصویر ہے عمران خان کی۔ You've seen that before or not? Only on TV, yeah, seeing the players walk through the long room. But yeah, it's cool to see it in person. What do you feel when you see something like that? Because we're obviously in a cricket environment where your dad, had many great moments. Yeah, definitely a sense of pride, obviously, but we're quite used to him being kind of the centre of attention in any kind of cricket sphere. But always, I mean, it's amazing to see, When did you last see him in the flesh? It was November 22, after there was an assassination attempt on him and he was shot a few times in the leg. That was the last time we were able to go out and see him. So coming up to 4 years. And so after that, he's been in jail just a little over 3 years now. When did you last speak to him?
in March, so we got to speak to him, around 5-6 months ago, and since then it's been radio silence. Not sure whether that's because of our call or them just tightening the restrictions on him and furthering this kind of sense of isolation and torture. And the broader family, the family that are in Pakistan, what's their access to him at the moment? No one, until last week, no one's been able to see him, been allowed to see him for 10 months, despite them going to the jail every week to attempt to see him. The court have ordered that he have weekly family visits, but no one's seen him for 10 months until last week. Pakistan government say you're welcome to go and see him. Just explain why you haven't and your reluctance to do that. Well, we've tried multiple times. The visas essentially are blocked. The visas we apply for are blocked for technical reasons, they said at one point. They're stalled in others. And essentially they just clearly don't want us to go for one reason or another. Maybe out of fear that we're going to be active and try to support the efforts of getting him out from over there, which I guess has just led to them stalling or rejecting. But to be clear, if you did get the visa, you would feel comfortable in going. You wouldn't be fearful of going. I don't think there's probably a small risk that we'd be arrested, but ultimately we just want to see him at this point, even if it's not to make any sort of noise and just minimal publicity. Yeah, we just want to see him because we're getting incredibly concerned about his situation. When you did speak to him over the phone, माइकल अथर्टन इंग्लैंड के कैप्टन ने ये इंटरव्यू लिया. मैंने आपको कुछ ऐसा सुनाया, 10-15 तकरीबन 20 मिनट का ये इंटरव्यू है जो कि स्काई स्पोर्ट्स पर भी मौजूद है. आप इस इंटरव्यू को लाइव देख ही सकते हैं. आप सुनिएगा. कॉन्फिडेंट हैं, कुछ उदास हैं. नौजवान बच्चे हैं इमरान खान के, कासिम और सुलेमान, और दोनों ने बहरहाल बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अपने वालिद के हवाले से भी बातें की हैं. और पाकिस्तान की हुकूमत जो कि झूठ कह रही है कि हमें वो आके मिल सकते हैं, धमकी दे दी जाती हैं कि अगर आप आएंगे तो आपकी सिक्योरिटी का कोई नहीं है, मार दिए जाएंगे, ये है वो है. और ऐसे में बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म स्टॉर्मर ने वो कह रहा है, कासिम खान कह रहा है कि उसने हमें भी रोका जी कि वहाँ पर सिक्योरिटी की वो गारंटी नहीं देते, आप मत जाएं, आप जाएंगे तो वो आपको पाकिस्तान में मार देंगे, आपकी जान को ख़तरा पड़ेगा. तो ये हैं इमरान खान के बेटे. ये इनके ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा है कि ये इंटरव्यू क्यों नशर हुआ. आप अंदाज़ा कीजिए. और उस पर मीडिया के लिए भी बहाने हैं. एक जगह से लोगों की तवज्जो हटा के उधर फेंको, उधर से हटा के इधर फेंको. पंजाब में सोशल मीडिया पर, नून लीग के सोशल मीडिया पर धूम मची हुई है मरियम नवाज़ की. मरियम नवाज़ ने चाइना में तकरीर की है और अंग्रेज़ी ज़ुबान की तो टांगें तोड़ के रख दी हैं. मैं आपको सुनाना चाहता हूँ. मरियम के साथ कोशिलिया उर्फ उज़मा बुखारी और नंदनी उर्फ डड्डू चार्जर या मरियम औरंगज़ेब वो भी मौजूद हैं. और वहाँ पर उनको और साथ कुछ पंजाबी मुंडे भी है गए ने. उन्होंने लेके गए ने कि क्योंकि चाइना वाले किसी वाले तालियां नहीं बजाते. सब दी माँ आ गई है, सारिਆਂ ਨੂੰ फड़का गई है तालियां. सब दी माँ आ गई है, बुशरा बीबी ਨੂੰ गालियाँ कट रही है, तालियां. सब दी माँ आ गई है, पंजाब को बिल्कुल तबाह कर गई है, तालियां. वो तालियां बजाने के लिए जहाँ भी ये जाते हैं, क्योंकि इनकी पब्लिकली तो कोई सपोर्ट दुनिया में कोई जानता भी, इनकी कोई हैसियत तो है नहीं है. ये कंजर किस्म के लोग हैं, हीरा मंडी शाही महल वाली ये नस्लें हैं, इनकी कोई इज़्ज़त तो होती नहीं है. इनकी क्या इज़्ज़त होगी. तो अपने साथ ये नंदनी, कोशिलिया और साथ कुछ लड़के हैं, उनको लेके जाती है कि आपने तालियां बजानी है. और वो मौका बेमौका, एक तो होता है मौका माल की मुनासबत से मैं कोई अच्छी बात कर रहा हूँ तो आप मेरे लिए मुझे अप्रिशिएट थोड़ा सा कर दें, तालियां बजा दें, ऐसा हो जाता है. कोई अच्छी बात है, इसमें बुरी बात नहीं है. लेकिन मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूँ जिसमें तालियां नहीं बजती. मैं उन बच्चों की मौत का जिक्र कर रहा हूँ जिन मासूमों को इन यजीदों फिर उन्होंने जला के मार दिया है. तो उन बच्चों की मौत पर तालियां नहीं बजा करती, मौका माल होता है. बहरहाल यहाँ पर मुल्क पाकिस्तान है और यहाँ पर मेरे ढोल सपाइया तेनू रब दियाँ रखां, करनैल नी जरनैल नी ये पुत्र हठां ते विकदे ने. और अजीज़ मियाँ ने अपनी कवाली शरीफ में फरमाया है कि मरियम बहुत मजहबी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है. और देखो अंग्रेज़ी की टांगें कैसे तोड़ रही है, ज़रा सुने.
from the visionary leadership of President Xi to the end. पढ़ रही है, ये स्क्रिप्टेड है, ये बोल नहीं रही, ये अंग्रेजी में ये बोल नहीं रही है। मेरे सामने बांगे दरा है, तो मैं भी आपके पढ़ के आपको सुनाऊंगा। ये मेरे पास बांगे दरा है, अब मैं बोल रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये तो डायरेक्ट मेरी आपसे बात हो रही है, लेकिन मैं ये शायरी में आपको पढ़ के सुनाऊंगा। मरियम पढ़ रही है, सुने कैसे पढ़ रही है, इसकी अंग्रेजी पढ़ने का स्टाइल देखें। Enduring legacy of Prime Minister Mohammad Nawaz Sharif and the continued commitment of Prime Minister Mohammad Shehbaz Sharif. The friendship has been carried forward from one generation to another. चलें जी, ये पाकिस्तान की बादशाह है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक प्रेसिडेंट जैनशी और मियाँ मोहम्मद शरीफ नवाज़। सुना आपने, मियाँ मोहम्मद शरीफ नवाज़ और मियाँ मोहम्मद शरीफ शहबाज, ये विजन है इनका। और इनका विजन जो है वो चाइना में इसके बाप ने क्या कहा था, 7 लुकमा देने के लिए शहबाज था। और फ्रेंडशिप विद चाइना हायर, आगे से शहबाज लुकमा देगा, हायर देन हिमालयाज, डीपर देन द विच सी, डीपर देन द पैसिफिक ओशन, एंड स्वीटर, हाउ मच स्वीटर, स्वीट, आगे से शहबाज लोकमा देगा, स्वीटर देन हनी। ये है वो नवाज शरीफ की वो चेन्नई की विजिट मौजूद है, जिसके विजन की और ये तारीफ़ें कर रही है। चाइना के प्रेसिडेंट का क्या विजन है, आई डोंट नो एंड आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट। इस वक्त मरियम है, आगे क्या कहा जरा सुने। I am proud to carry that legacy with the responsibility to take this friendship into the next frontier. Data, technology, and shared innovation. Long before the world fully recognized it, Guizhou understood that data is अच्छा, कोशिश असल में अंग्रेज़ी के बारे में, इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ जेस्चर। व्हेन यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, sometimes you speak with gestures. You move your shoulder, sometimes you move your mouth, sometimes you move your neck here and there, and you also move your hands and all body. अंग्रेज़ी के बारे में कहते हैं ना, अंग्रेज़ी जेस्चर्स की ज़ुबान है, इसमें इशारे बड़े हैं, जिस्म भी। और कोई भी आदमी अंग्रेज़ी बोलेगा, फ्लुएंटली जब बोलेगा तो उसका जिस्म हिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर ये हिलने की भी कोशिश कर रही है, एक्टिंग करने की भी बड़ी कोशिश कर रही है, और नंदनी और कौशल्या तालियां बजा रहे हैं। यह है इसकी हकीकत। और ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती, ये मैं आप पर छोड़ूंगा। अब मैं खोते वाली सरकार मिठा जी, ये मरियम का बाप का करीबी तरीन आदमी है, और इनकी अखलाकी तरबियत क्या है, इनकी अखलाकी तौर पे ये किस कहते हैं सोच के लोग हैं, किस फ़िक्र और कैसा शऊर है इनका, ये ज़रा सुने, ये ज़रा गौर से सुने कि ये पंजाबी में कह रहा है। ਮਿੱਠਾ ਜੀ, ਬੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਗੱਦਾਰ ਨਿਕਲੇ। 804 ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਔਰ ਕਾਲਾ ਆਸ਼ਿਕ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ 804 ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਔਰ ਕਾਲਾ ਆਸ਼ਿਕ, ਇੱਕ ਹੀ ਮਾਮਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਸ਼ਤਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਆਖਰੀ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੇ ਰੌਲੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਵੱਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ। ਨਿਆਜ਼ੀ ਦਾ ਬਚਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਸ ਵੀ ਇਹ ਕਰੀਬ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 9 ਮਈ ਦਾ ਕੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਕੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾ ਆਵਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੱਡੇ ਰੌਲੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब करो। ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਗੱਦਾਰ ਨਿਕਲੇ। ये न्याजी तो चलो ये कासम खान ने और उसका इंटरव्यू उन्होंने जो दिया है, उसने लेके ये कह रहा है न्याजी के मुंडे ते गद्दार निकले ने। ये उस इंटरव्यू को लेके ये कह रहा है। आगे सुने। 2 नंबरा निकल आया, मुल्क दुश्मन निकल आया। लेकिन ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ औलाद है वो ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ भी गंदी निकली है। यकीन करो, बड़ा अफसोस का एक गल है।
ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹਰ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ज़रा अंदाज़ा लगा लो भाई पूरे का पूरा महकमा ही झूठा है। पाकिस्तान के हवाले से एक बात भी कासम खान ने, और पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने सिर्फ अपने वालिद के मुताल्लिक़ बात की है। माइक थर्टन से उनके वालिद पर ज़्यादती हो रही है, उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है, उनके इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से बातें की हैं, और बिल्कुल पाकिस्तान के हवाले से अच्छा बुरा कुछ नहीं कहा। आगे ये क्या कह रहा है, ये नून लीग की ट्रेंड में, इसलिए ये मेरे नून लीग के भी कुछ दोस्त देखें, उनकी तरबियत ये होती है। अब ये पंजाबी में गुफ्तगू कर रहा है, और इससे अच्छे वाले लोग हैं, इसके काफ़ी सारे सब्सक्राइबर भी हैं और इसके व्यूअर्स भी अच्छे वाले हैं। अब वो लोग जो इस शख्स को देखेंगे, मैं आपको समझाने के लिए मैं सुना रहा हूँ, वरना इतने घटिया गलीज आदमी को बल्कि बंद ही करता हूँ। अब आगे इस घटिया आदमी को मैं नहीं सुनाऊँ तो बेहतर है। इससे बेहतर है कि मैं आपको पंजाबी की एक नज़म सुना दूँ, पंजाब का इस वक्त जो हालात हैं, और उसके बाद इकबाल की नज़म भी सुना दूँ। पंजाब के इस वक्त ये हालात हैं, पंजाब में मरियम नवाज़ की बिल्कुल रिहाइशगाह के करीब टाउनशिप का जो एरिया है वो मॉडल टाउन से मेरे ख्याल में करीब पड़ता है। मुझे इतना लाहौर का पता तो नहीं है, लेकिन मैं घूमा हुआ हूँ, जगहों के नाम का मुझे इतना पता तो नहीं है, लेकिन मैंने सुना यही है कि जो टाउनशिप है वो मॉडल टाउन से करीब आती है ये जगह। 2 बच्चियाँ, उनको रेप किया मरियम की पंजाब पुलिस ने। ऐसे हुआ या नहीं हुआ, ये है पंजाब के हालात। और ये गालियां देने, ये उस पर बात नहीं करेंगे। मुरीद के में खादम रिजी से आप इख्तलाफ करो, जो भी करो, लेकिन खुदा के लिए मेरे पंजाबियों, उसके लिए कुछ तो, उसके बेटे हैं वो पाकिस्तान के शहरी हैं, उन्होंने किसी को कत्ल नहीं किया हुआ था। 800 लोगों को गाड़ियों के नीचे कुचल के मार दिया पंजाब पुलिस ने, और उसके साथ मेरे ढोल सिपाहियों ने। खादम रिजवी के बेटों का आज तक पता ही नहीं है वो हैं कहाँ। अनस रिजवी कहाँ है, अनस रिजवी और साद रिजवी उसके जो बेटे हैं कहाँ है वो। फिर मॉडल टाउन का आप भूल जाते हैं, ख़वातीन पर, उनके जिस्मों पर हमला, प्रेगनेंट, अल्लाह अकबर, उनके सीनों पर रखकर गोलियां चलाई, गुल्लू बाट, बड़ी बड़ी मूँछों वाले। मैं तो यही कहूँगा, आज आखां वारस शानू किथों कपरां विचों बोल। ये अमृता प्रीतम की पंजाबियों से मोहब्बत के इजहार के लिए यह नज़म आपको फिर सुनाता हूँ। अज आखां वारस शानू किथों कबरां विचों बोल, ते अज किताब इश्क दा कोई अगला वर्का फोल। एक रोई सी धी पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैन, अज लखां दियां रोंदियां तेनू वारस शाह नू कहन। उठ दर्दमंदां दिया दर्दिया, उठ तक अपना पंजाब, हर पासे लाशां विछियां ते लहू दी भरी जनाब। किसे ने पंजां पानियां विच दिता जहर मिला, ते उन्हां पानियां धरत नूं दिता जहर पिला। ते धरती ते लहू वसिया कबरां पईयां चौन, प्रीदियां शहजादियां अज विच मज़ारां रोन। अज छबे केदू बन गए हुस्न शक्ति चोर, अज कित्थों ले आइए लब के वारिस शाह एक और ये इकबाल की मैंने साकीनामा से आपकी खिदमत में ये भी आखिर में पेश कर दूं, क्योंकि मैंने 2-3 बार मैंने सुनाने की कोशिश की, लेकिन वो टाइम बहुत तेज़ी से गुजर जाता है तो मिस हो गई। तो अब आप ये ज़रूर सुने, आपको मज़ा आएगा। निगाह फ़िक्र में शान कलंदरी क्या है, निगाह फ़िक्र में शान कलंदरी क्या है। खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है। बुतों से तुझको उम्मीदें खुदा से नोमीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। फलक ने उनको अता की है ख्वाजगी के जने, खबर नहीं रविश बंदा परवरी क्या है। फ़कत निगाह से होता है फैसला दिल का, फ़कत निगाह से होता है फैसला दिल का। ना हो निगाह में शोखी तो दिल बरी क्या है। इसी खता से अताब मलूक है मुझ पर, कि जानता हूँ माले सिकंदरी क्या है। किसे नहीं है तमन्नाए सरवरी, लेकिन खुदी की मौत हो जिसमें वो सरवरी क्या है। खुश आ गई है जहाँ को कलंदरी मेरी, वगरना शहर क्या मेरी शायरी क्या है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने, और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।